اوکے ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پولینومیلز ہم اسٹارٹ کرنے لگے. اب بہت آسان ہے چیپٹر پولینومیلز. اوکے سو پولینومیلز. اوکے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب پولی مینز مینی ٹرمز. لائک فار ایگزامپل ایکس اسکوئر کی ہم پڑھتے تھے, اس کو ہم بولتے تھے کوڈریٹک ایکویشن. ایکس کیوب جو ہوتا تھا وہ کیوبک ایکویشن ہوتی تھی, اینڈ سو آن چلتا جائے. تو جتنی بھی ٹرم زیادہ ہوتی جائیں, یعنی مور دین ون ٹرم, تو ان ایکویشنز کو بیسیکلی ہم کہتے تھے پولینومیل ایکویشن. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اب ایکویشن کین بی گیون ٹو اس ان مینی فارمز. تو میں یوں لکھ لیتا ہوں کہ آپ کو ایف آف ایکس کی ایک ایکویشن دی ہوئی ہے which is 2x کیوب minus 7x square plus 5x minus 4. اور میں کہتا ہوں کہ x ڈیوائڈیڈ بائی, میں کہتا ہوں اس کو آپ نے ڈیوائڈیڈ کرنا ہے x minus 3 سے, اور آپ نے بیسیکلی بتانا ہے کہ آپ کا ریمائنڈر جو ہے وہ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہیں یہاں پہ. دوبارہ دیکھ لو کہ آپ کو ایک ایکویشن گیون ہے اور آگے لکھا ہوا ہے x minus 3 سے ڈیوائڈ کرنا ہے آپ کو, اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ریمائنڈر آئے گا وہ آپ نے بتانا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جس سے ہم یوں کرتے تھے کہ اگر یوں ہے 7 ڈیوائڈ بائی 2 کرنا ہے تو 2 3 6 اور نیچے 1 آتا تھا. تو یہ جو بیسیکلی لاسٹ والی ٹرم ہوتی تھی یہ ہوتا تھا ریمائنڈر. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ریمائنڈر آپ کا کیا آئے گا. اوکے اب اس کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹر ریمائنڈر تھیورم. ٹھیک ہے, فیکٹر ریمائنڈر تھیورم. اور ایک اور ہوتا ہے جو پہلے بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے, لانگ ڈویژن. ٹھیک ہے. تو یہ دو میتھڈز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ کسی بھی ایکویشن کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہو. اب فیکٹر ریمائنڈر تھیورم اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی فیکٹر جس سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو وہ لینئر ہونا چاہیے. وٹ ڈو آئی مین بائی لینئر؟ لینئر کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایکس کی میکسیمم پاور جو ہوگی وہ 1 ہوگی. تو اس کیس میں دیکھو جب میں اس کو ایکس مائنس 3 سے ڈیوائڈ کر رہا ہوں تو اس میں ایکس کی میکسیمم پاور جو ہے وہ 1 ہے. تو فیکٹر ریمائنڈر تھیورم جو ہے ہم اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے میں ایکویشن دوبارہ یہاں لکھ لیتا ہوں جو اوپر لکھی ہوئی تھی, پلس 5x مائنس 4. اوکے اب میں نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے x مائنس 3 سے. اب دیکھو جب بھی اب آپ نے اس کو اب دیکھنا ہے کہ x کی ویلیو ہم کیا لیں گے. تو جو بھی جس سے بھی ہم ڈیوائڈ کریں پہلے تو آپ اس کو اکوس ٹو 0 پٹ کرو, اور یہاں سے x کی ویلیو نکل کے آتی ہے 3. اب آپ نے یہ 3 کی ویلیو پکڑنی ہے اور اس ایکویشن کے اندر جا کے آپ نے واپس سبسٹیٹیوٹ کر لینا ہے. تو جب آپ اس کو اس ایکویشن کے اندر سبسٹیٹیوٹ کرتے ہو تو میں ادھر سبسٹیٹیوٹ کر لیتا ہوں کہ f آف 3. تو 2 انٹو 3 کا کیوب minus 7 into 3 کا square plus 5 into 3 and then minus 4. تو دیکھو آپ کا آنسر جو ہے وہ کیا نکل گیا. کتنا آتا ہے؟ 2 آ رہا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے 2 آ رہا ہے. ہاں مائرہ دنیا آپ دونوں کا آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو بیسیکلی سمپلی ہمارا ویری گڈ. تو یہ جو ہمارا آنسر نکل کے آتا ہے دس از سپوز ٹو بی آور ریمائنڈر. ٹھیک ہے. تو فیکٹر ریمائنڈر تھیورم لگانے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایکس کی ویلیو پلگ ان کریں تو ڈائریکٹلی جو بھی ہمارا آنسر نکل کے آئے گا وہ ریمائنڈر نکل کے آئے گا. اسی طرح جو دوسرا میتھڈ تھا وہ تھا لانگ ڈویژن, جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا جب ہم پارشل فریکشنز پڑھ رہے تھے کہ لانگ ڈویژن جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. اب پارشل فریکشن میں تو ایک سٹیپ پہ لانگ ڈویژن ختم ہو جاتی تھی, بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلے تو میں ایکویشن لکھ لیتا ہوں کہ 2x کیوب minus 7x square plus 5x minus 4. اوکے اس ایکویشن کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے x minus 3. اب آپ کو اگر یاد ہو کہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ڈویژن کس طرح سے کرتے ہیں لانگ ڈویژن میں, کہ the largest term inside divided by the largest term outside.
तो मैं क्या करूंगा कि 2x³ तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या निकल के आता है? हाँ, 2x³ करते हैं तो क्या निकल के आता है? 2x², 2x², बिल्कुल ठीक है। इस 2x² को मैं यहाँ टॉप के ऊपर लिख लेता हूँ। अब उसी तरह से कि इस 2x² को जाके मैं दोनों टर्म से जाके मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो आई वुड गेट 2x³ माइनस 6x²। यूं करके लाइन आ गई, और अब हम साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस और इधर आ जाएगा प्लस। दीज टू टर्म्स वुड कैंसल आउट, और ये आ जाएगा -x² प्लस 5x माइनस 2। Okay, now the largest term here divided by the largest term here. तो जरा करके देखो, -x² x, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या निकल के आता है? -x। -x, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यहाँ लिखा हमने -x, अब -x को जाके दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो दिस बिकम्स -x² एंड दिस बिकम्स +3x। अब यूं करके हमने लाइन लगाई। Now you have to change up the signs. This becomes positive, this becomes negative. These two terms would cancel out, and this becomes 2x minus 4. अब लास्ट एक और दफा, this term 2x, largest term inside divided by the largest term outside. तो 2x divided by x करते हैं तो हमारा निकल के आता है 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, अब 2 को जाके दोनों से मल्टीप्लाई करो, it becomes 2x minus 6. अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे, this becomes negative, this becomes positive. ये दोनों कैंसल आउट होंगे और हमारा आंसर निकल के आया 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो वी कैन से कि जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज बेसिकली 2। तो आप देख रहे हो कि व्हेन वी यूज्ड लॉन्ग डिवीजन तब भी हमारा आंसर 2 आ रहा है, और जब हमने फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम यूज किया था तब भी हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है। बट एक मेथड से हमारा आंसर फौरन आ गया, और एक जो है दैट इज अ वेरी क्वाइट लॉन्ग मेथड। ठीक है, बट कर हम दोनों से सकते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ तक? जी सर, आ रही। बताओ, देख लो, कोई चीज, कोई बात, कोई चीज कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। अब यस, ये कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है कि हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है। वो मैं बता देता हूँ बिल्कुल, कि वो हमें कैसे पता लगेगा। एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपका फैक्टर, ये जिससे भी आप डिवाइड करें उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर या डिवाइजर जो होंगे, आइदर इट कैन बी लीनियर और या होंगे नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ओके, दिस लुक्स वेरी हार्ड। एक होता है हमारा लीनियर, ओके, दिस इज नॉन लीनियर। ओके, जब हमारा लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आपने याद रखना है कि लीनियर फैक्टर्स के ऊपर आप फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कैन बी अप्लाइड ऑन द लीनियर फैक्टर्स। अब व्हाट डू आई मीन बाय लीनियर फैक्टर्स? जिस तरह यहाँ पे मेरा फैक्टर जो था वो था x-3 जिससे मैंने डिवाइड किया था। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीनियर फैक्टर्स। और दूसरे हो गए हमारे नॉन लीनियर फैक्टर्स। नॉन लीनियर फैक्टर्स में स्क्वायर भी आ सकते हैं, क्यूब भी आ सकते हैं। ठीक है, अदर देन द लीनियर इज नोन एज टू बी योर नॉन लीनियर फैक्टर। तो इसके लिए हम यूजली अप्लाई करते हैं लॉन्ग डिवीजन। समझ आया कि नहीं आया? जी बेटा, आप बताओ। हाँ सर, समझ आ रहा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कि जहां पे लीनियर फैक्टर्स होंगे वहां फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, और जहां पे हमारे पास नॉन लीनियर फैक्टर्स होंगे वहां हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर लेंगे।
ठीक है, बट करने के मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये करने का मेथड जो है वो सेम रहेगा, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मेथड दैट यू सिलेक्ट। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हम करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, जैसे फॉर अच्छा एक और चीज, जब भी लिखा हो कि कोई चीज हमारा फैक्टर है या वो कहे कि वो डिवाइजर है, तो एक चीज अंडरस्टूड होती है जो वो लिखता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा रिमाइंडर जो है दैट इज सपोज टू बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर कोई चीज फैक्टर होती है तो उसका आंसर रिमाइंडर जो बचता है वो जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ 27 लिखता हूँ, तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो 3 9 27, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आता है जीरो। इसका मतलब ये होता है कि ये 27 जो है 27 का जो फैक्टर है वो एक 3 है। बात समझ आ रही है? तो जब भी कोई इक्वेशन चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर और डिवाइड करें और वो अगर लिख देता है क्वेश्चन के अंदर कि मैं ये फैक्टर है या डिवाइजर है, ठीक है, तो आप उसको कहोगे कि भाई इसका जो रिमाइंडर है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। समझ आई बात? क्या नहीं आई? हाँ जी सर। ओके, अब एक और करते हैं। मैं कहता हूं फाइंड के इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 लीव्स रिमाइंडर k when divided by x minus 2। ओके, तो अब मुझे बताओ, would factor remainder theorem would be easier or linear division would be easier in this case? Factor theorem. Factor and remainder theorem. And how did you select factor remainder theorem? It's linear. Yes, because ये वाला जब फैक्टर या डिवाइड जिसे हम कर रहे हैं, जब उसको हम देखते हैं ये x माइनस टू, दिस इज अ लीनियर फैक्टर, तो आप इजीली कह सकते हो कि भैया हम यहाँ पे फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो जब x की वैल्यू लेनी होगी तो रिमेंबर x माइनस टू इज सपोज टू बी इक्वल्स टू जीरो, देन x वुड हैव अ वैल्यू ऑफ 2। इस 2 की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है इनटू दिस इक्वेशन। ओके, तो जो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं इस इक्वेशन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस k इंटू 2 एंड देन अ पॉजिटिव 4 आफ्टर दैट। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 8 2 स्क्वायर 4 टाइम्स 3 12 माइनस 2k प्लस 4, और इसको और सिंप्लीफाई करने तो दिस बिकम्स 24 माइनस 2k। अब उसने ये कहा था कि जो आपका रिमाइंडर जो है शुड बी इक्वल्स टू k, तो ये जो भी हमारा रिमाइंडर निकला है 25 24 माइनस 2k, इसको भी मैं क्या करूंगा इक्वल्स टू k पुट कर लूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा 24 इज इक्वल्स टू 3k और k की वैल्यू यहां से निकल आएगी 8। देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। ओके, देख लो बेटा, एनी कंफ्यूजन सो फार और एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड तो पूछ लो पहले। सर 24 माइनस 2k के इक्वल आपने रिमाइंडर k लिखा है ना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है? जी जी, इक्वल्स टू k लिखा है। ठीक। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब एक और मैं क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेट्स टेक x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस a, और मैं कहता हूँ कि और इसको मैं कह देता हूँ दिस इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपने एक इसको नहीं, मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड a एंड द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, पहले तो बेटा आप लोगों ने मुझे ये
फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम इजी रहेगा कि लॉन्ग डिवीजन इजी रहेगी? लॉन्ग डिवीजन। हाँ बिल्कुल ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन इसलिए इजी रहेगी बिकॉज हम अपना ये फैक्टर देखते हैं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो नॉन इसको नॉन लीनियर हम कंसिडर करेंगे, तो नॉन लीनियर में हमेशा लॉन्ग डिवीजन इज द इजीएस्ट वन। तो मैं इसको लिखता हूँ x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड देन अ पॉजिटिव a आफ्टर दैट। और अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड किससे करेंगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। Okay, the largest term inside divided by the largest term outside. So x power 4 should be divided by x square. तो क्या निकल के आता है हमारा? Sir, positive x square. Positive x square. तो positive x square मैं यहाँ लिख लेता हूँ. And now this x square would be multiplied with all the terms here. So this becomes x power 4. Then it becomes x cube. Then it becomes positive 2x square. And that's it. Okay. अब यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान से देखना. Okay. इसमें अब एक प्रॉब्लम आएगी छोटी सी. ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. ओके, x पावर 4 माइनस x पावर 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. अब बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये 3x स्क्वायर है और ये x क्यूब है. क्या ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? लुक एट दीज टू टर्म्स. क्या ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? No, sir. नो सर। और वो क्यों नहीं हो सकती? Different power. हाँ एग्जैक्टली डिफरेंट पावर है. तो ये एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. तो ये वाला जो माइनस एक्स क्यूब लगा हुआ है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा. उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे. तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ करो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वुड गिव यू प्लस एक्स स्क्वायर. और ये जो लास्ट टर्म है a, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे ही नीचे आ जाएगी. ये समझ आया थोड़ा सा कि नहीं आया? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में क्यूब था ही नहीं, तो वो किसी में भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा. तो इस चीज का आपने खुद ध्यान रखना है. उसके बाद अब ये नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब, क्या कहां से? द लार्जेस्ट टर्म इनसाइड डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट टर्म आउटसाइड. तो माइनस एक्स क्यूब वुड बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दैट वुड गिव यू माइनस एक्स. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स एंड दिस माइनस एक्स वुड बी मल्टीप्लाइड विद बोथ actually all these three terms. तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये होंगे कि लाइन लगा लेते हैं. दिस becomes positive, this becomes positive, this becomes positive. These two terms would cancel out. अब x square plus x square would become 2x square. अब देखो सेम प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. तो आप क्या करोगे? दोनों टर्म्स को कैरी डाउन कर लोगे नीचे इस तरह से, लाइक दिस. समझ आया कि नहीं आया? देखो एनी कंफ्यूजन सो फार है? ओके, Sir, अब इसी कितने तरह marks लास्ट का वाला होगा? देखो जो दला 4-5 मार्क्स का होगा. Okay. Okay, now the next term largest sum inside divided by the largest term outside. तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर आ जाएगा 2. So positive 2 would be at the very end. अब 2 को हर टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, it becomes 2x square plus 2x plus 4. यूं करके लाइन लगाते हैं. अब साइंस चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. ये जो दो टर्म्स रह गई हैं a माइनस 4 इज द लास्ट वन. तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे ये हमारा रिमाइंडर है. ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट चीज. अब जब मैंने क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ था कि इट इज अ फैक्टर, तो फैक्टर जब होता है तो हमारा रिमाइंडर कितना होता है? 0। एग्जैक्टली. तो बेसिकली ये जो फाइनल एंड पे आंसर आया, सॉरी ये वाला जो आंसर आया है a माइनस 4, दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू 0. तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड a वुड हैव अ वैल्यू ऑफ 4.
یہاں تک سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ اے کی ویلیو ہم نے کیسے نکالی ہے؟ ہاں بتاؤ. اینی کنفیوژن، اینی تھنگ دیٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ تو پوچھ لو. اوکے. اور دو چیزیں اس نے پوچھی تھی. اس نے کہا تھا کہ آپ نے ایک تو اے فائنڈ کرنا اور دوسرا فیکٹر فائنڈ آؤٹ کرنا. تو دوسرا فیکٹر ہمارا کیا ہوگا؟ اینی ون ہو کین ٹیل می. اوکے ویری ڈیفیکلٹ برو. اوکے وہ میں نے کہاں لکھا تھا؟ اوکے یہ جو میں نے لکھا تھا یہاں پہ 27 کے کیا کیا فیکٹرز ہیں یہاں پہ مجھے بتا سکتے ہو دیکھ کے؟ 9 and 3. اوکے ویری گڈ. تو ایک تو فیکٹر اس کا 3 تھا کیونکہ ریمائنڈر 0 آیا اور آٹومیٹکلی جو ٹرم یہاں اوپر نکل کے آئی ہے دس شوڈ بی یور ادر فیکٹر. یہ بھی اس ایکویشن کا اس نمبر کا فیکٹر ہوگا. تو جب آپ یہاں پہ جب ہم نے یہ والا لانگ ڈویژن والا کوشچن کیا تو اس میں یہ جو ٹاپ کے اوپر پورشن نکل کے آ رہا ہے یہ والا دس پورشن دس از آلسو سپوز ٹو بی یور فیکٹر. تو میں اس کو یہاں پہ کیا یہاں لکھ دیتے ہیں ادر فیکٹر جو ہوگا وہ ہمارا یہ والا ہوگا. سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ دو فیکٹرز ہمیں کس طرح پتہ لگے؟ ایک تو جس سے ہم نے ڈیوائڈ کیا ایک فیکٹر ہمارا وہ تھا اور دوسرا جو یہ ٹاپ کے اوپر آیا یہ ہمارا آٹومیٹکلی دوسرا فیکٹر تھا. ٹھیک ہے. تو وین ایور need to find other factor use long division. یہ یاد رکھنا آپ نے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہمارا ایک فیکٹر ہوگا اور ایک فیکٹر ہمارا یہاں پہ ہوگا. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب بتاؤ اینی کوشچن سو فار یا کوئی چیز کوئی بات نہ سمجھ آئے گا؟ So whenever it says factor, the remainder is always 0, always? اگر کوئی چیز یس بیکاز اف سم تھنگ از اے فیکٹر فیکٹر تو بولتے ہی اس کو ہے جس جو اس ٹیبل میں آتا ہو. تو بیسیکلی اٹ مینس کہ اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 0 ہوگا. ٹھیک ہے. فیکٹر اور ڈیوائزر نہیں تھا. آئی تھنک آئی مائٹ ہیو مجھے میں نے تو بھی نوٹ کیا ڈیوائزر از اے رانگ ورڈ. ڈیوائزر نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈیویزیبل ایکچولی میں نے لکھنا تھا. ڈیویزیبل مینس دا سیم تھنگ. اگر میں کہتا ہوں جیسے 100 جو ہے وہ 10 کے ٹیبل پہ ڈیویزیبل ہے ڈیوائزر تو نہیں بولتا نا میں اسے ڈیویزیبل بولتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس ٹیبل کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکچولی جی سر. غلط ورڈ لکھا تو اس کو ٹھیک کر لینا. ڈیوائزر نہیں ہے وہ ڈیویزیبل. ڈیوائزر تو کہتے ہیں جس سے بھی آپ ڈیوائڈ کر دو وہ ڈیوائزر ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اوکے. اب کبھی کبھی کچھ اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. لائک فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پی آف ایکس کی جو ایکویژن ہے دس از 3x کیوب مائنس 10x اسکوئر پلس 9x مائنس 2 اور میں یہاں لکھ دیتا ہوں فیکٹرائز کمپلیٹلی. اوکے. اب اس طرح کے کوشچنس کے اندر ایک پرابلم آپ کو نظر آتی ہے کہ اس نے ایکویژن دی اور وہ کہہ رہا ہے کہ فیکٹرائز کر دو. اب ہم سٹارٹ کیسے کریں؟ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بھائی باقی جو ہے وہ ڈیوائڈ کسے کرنا ہے یا کیا لانگ ڈویژن کرنی ہے فیکٹر ریمائنڈر کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ اب اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ the first thing is کہ آپ کو سٹارٹ ہی جو ہے وہ تھوڑا ہٹ اینڈ ٹرائل سے کرنا پڑتا ہے. یوز ہٹ اینڈ ٹرائل. what do I mean by that؟ یوز ہٹ اینڈ ٹرائل میں ہے کہ ایکس کی ویلیوز آپ پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 یا پلس مائنس 3. اب یولی ہوتا یہ ہے کہ جن کوشچن میں اگر کوئی ویلیو نہ دی ہو آپ کو اسٹارٹنگ کے لیے اس میں ان میں سے کوئی ایک ویلیو آپ کا فیکٹر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہوگا. لائک اب اس کو یوز کس طرح کرنا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ چلو میں 1 سے لیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں پی آف 1 تو دیکھو 3 into 1 کا کیوب
-10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -2। हमारा आंसर क्या आता है इसका, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर करते हो? हाँ, किसी ने निकाला फिर क्या आंसर आता है इसका? सर 0 आता है। गुड। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है ये रिमाइंडर 0 है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है इट मींस दिस इज योर फैक्टर। ये थोड़ी सी बात समझ आइए कि हमने चेक करना है कि हमारा फैक्टर 0 जो है वो कब आएगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, चलो ये तो बाय चांस तो उसी में ही पता लग गया। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ -1 लेके देखो, तो जरा देखो 3 इंटू -1 क्यूब -10 इंटू -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 एंड देन -2। इसका आंसर देखो क्या आता है, -24। -24। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका मतलब है नॉट अ फैक्टर। ये -1 जो है वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो बेसिकली हिट एंड ट्रायल से हम कर क्या रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि किस वैल्यू के अगेंस्ट हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। बाई चांस हमने 1 डाला, उसी में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं 1 को इधर लेके जाऊंगा तो आई कैन राइट इट डाउन एज x -1 इज माई डिवाइजर। ये मेरा पहला फैक्टर आ गया। समझ आया यहां तक कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ जी सर। हाँ बताओ, ओके। अब हमने बाकी फैक्टर्स कैसे निकाले, अब बाकी भी क्या बैठ के वो क्या करें, हिट एंड ट्रायल करें? नो। अब बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें बाकी के फैक्टर्स जो है वो पता लग जाएंगे। तो मैं इक्वेशन पहले अपनी लिख लेता हूँ कि इक्वेशन थी 3x³ -10x² प्लस 9x -2। और इसको अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो हमारा पहला फैक्टर निकल के आया है इससे हम डिवाइड करेंगे, ताकि हम जो अदर फैक्टर है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारे अदर फैक्टर आता था, तो इससे हम बाकी के दूसरे फैक्टर्स निकाल सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट टर्म इनसाइड डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट टर्म आउटसाइड। तो 3x³ ओवर x करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? x²। वेरी गुड, 3x²। तो जब आप यहाँ 3x² लिखते हो और अब इन दोनों को जाके मल्टीप्लाई करो तो इट मींस 3x³ -3x²। यूं करके लाइन लगी और यहाँ पे साइन चेंज माइनस एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट बिकम्स -7x² प्लस 9x -2। अब -7x² ओवर x करें तो -7x आता है। तो मैं -7x यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसको जाके मैं सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो -7x² प्लस 7x, यूं करके लाइन लगी, ये बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से इट बिकम्स 2x -2। अब यहाँ पे 2x ओवर x करेंगे तो हमारा फाइनल आएगा 2। तो +2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x -2, दिस बिकम्स नेगेटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिव, ये इससे कैंसल आउट हुआ, ये इससे कैंसल आउट हुआ, तो ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0। ये रिमाइंडर 0 आना इज द प्रूफ कि भाई जो मैंने लॉन्ग डिवीजन की है दैट इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि x -1 वाज ऑलरेडी अ फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर था तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। तो तो एक फैक्टर मेरा ये है, और दूसरा फैक्टर ये जो है ये अदर फैक्टर जो हम जिसे कह रहे थे वो टॉप के ऊपर है, इसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूं कि हमारे दो फैक्टर्स अभी तक निकले, p ऑफ x इक्वल्स टू x -1 और दूसरा निकला है 3x² -7x प्लस 2। अब बेटा ये यहां तक करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने क्वेश्चन में लिखा है कि फैक्टराइज कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब ये है कि अगर ये और फैक्टराइज होता है तो आपने इसको बिल्कुल करना है। व्हाट डज दैट मीन, कि अगर आप देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय टर्म ब्रेकिंग।
तो अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हो वो क्या थी कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आता है 6, तो इसको हम यूज करते हुए तो 3x² -6x -x+2, यहाँ से 3x कॉमन निकाले तो x-2, और यहाँ से -1 कॉमन निकाले तो x-2। तो मेरे जो दो फैक्टर्स बनते हैं x-2 एंड 3x-1। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इससे दो फैक्टर्स क्रिएट हो गए। जब मैंने फाइनल आंसर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि एक फैक्टर मेरा x-1 है, एक फैक्टर मेरा x-2 है, और एक फैक्टर मेरा 3x-1 है। तो क्यूबिक इक्वेशन के ये तीन फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब मुझे बताओ यहां तक कोई चीज कोई बात कुछ ना समझ आया हो तो। हाँ बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? Sir, x minus 1 is like linear, so do you still have to use long division for it? ओके, एक्चुअली x-1 आ गया ना। अब मैंने ये कहा था कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें रिमाइंडर फाइंड करना है कि अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करना है? Other हाँ, factor. तो इसलिए हमने लॉन्ग डिवीजन यूज किया। तो एक्चुअली पता है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नॉन लीनियर या फिर टू फाइंड अदर फैक्टर्स। ठीक हो गया? जी ये सर। मैंने यूं करके लिख भी दिया। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम इज ओनली यूज टू फाइंड रिमाइंडर, ओनली टू फाइंड रिमाइंडर। ठीक है? जी सर। ओके, देख लो यहाँ तक। एनी क्वेश्चन सो फार तो यू शुड आस्क। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक कर लेते हैं। x³ + ax² + bx + 3, और मैं कहता हूँ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 3 and leaves remainder of 91 when divided by x - 4. Find a and b. ओके, अब मुझे पहले यहाँ पे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे वुड लॉन्ग डिवीजन भी प्रेफरेबल और फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम वुड भी प्रेफरेबल? याद रखो हो दोनों से जाता है, बट हम देखेंगे हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा। ठीक है जी? फैक्टर रिमाइंडर और लॉन्ग डिवीजन। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमें फैक्टर लीनियर है कि नॉन लीनियर है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिससे हमने डिवाइड करना है, क्योंकि नॉन लीनियर। सर लीनियर हमारा फैक्टर जो है वो लीनियर है जिससे हमने डिवाइड करना है। x + 3 और x - 4 दोनों लीनियर है हमारे। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है, क्या हमें अदर फैक्टर फाइंड आउट करना है कि हमें रिमाइंडर की तरफ जाना है? कौन सा मेथड प्रेफरेबल रहेगा, फैक्टर रिमाइंडर के लॉन्ग डिवीजन? फैक्टर रिमाइंडर। फैक्टर रिमाइंडर, हमारे फैक्टर्स जो से डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर है, और लीनियर होंगे तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं, फैक्टर रिमाइंडर की तरफ। और फाइंड भी हमें रिमाइंडर ही करना है। तो ये दो चीजों से हमें पता लग रहा है कि भाई फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम की तरफ जाना। अब यहाँ पे लिखा है डिविजिबल। डिविजिबल के लिए क्या चीज हमें से पता लगती थी डिविजिबल के वर्ड से?
तो रिमाइंडर 0 है. एग्जैक्टली जब डिविजिबल लिखा होता है तो ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि आपका रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. कब आएगा? जब आप उसको डिवाइड करोगे x+3 से. तो x+3 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू आपने क्या लेनी है? -3. गुड, -3. तो मैं अब सब्स्टिट्यूट करता हूँ. 3 की वैल्यू -3³ इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 एंड देन अ +3 आफ्टर दैट was -27 ने -3b प्लस 3 ने -3b -24 कहा था कि रिमाइंडर शुड डिविजिबल है, तो इसका मतलब है शुड बी पुट इन इक्वल टू 0. थोड़ा और सिंप्लीफाई करें. 9a -3b इज इक्वल टू 24. और अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 3 कर देते हो तो ये और सिंप्लीफाई हो जाती है. इट बिकम्स 3a - b इज इक्वल्स टू 8. और इक्वेशन नंबर 1 आया कि नहीं आया? ओके, एक्स की सेकंड वैल्यू क्या लेंगे? That it leaves a Step remainder one. divided by x minus 4. बिल्कुल 4 लेंगे हम. तो जब मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इनटू द इक्वेशन प्लस a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 सॉल्व करो तो 64 प्लस 4b प्लस 3 या 16 है. अब उसने कहा था कि द रिमाइंडर जो आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 91. तो मैं यहाँ इक्वल्स टू 91 कर देता हूँ. 3a प्लस 4b तो उसी तरह ही रहा. 67 को जब दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 91 माइनस 67 कितना आता है? 24. देख लो 91 माइनस 67 कितना आता है? तो 24. When I divide this equation by 4 तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी कि 4a is equals to 6. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई. इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ. तो कि इक्वेशन नंबर 1 को पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ. is equals to 3a minus b. b minus b would cancel out with each other. 7a and 6 plus 8 would give you 14. Value of 2. Equation number 1 के अंदर दोबारा सब्स्टिट्यूट करूं to get the value of b. तो 3a minus b ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी. तो चला जाएगा 2. b is equals to 8. वैल्यू -2. तो दोनों आंसर्स आ गए. a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास b की वैल्यू भी सपोज टू डू. तो कभी कभी होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी हमारी बन जाए.